Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, today we are going to meditate on a famous verse 1 Timothy 1:17. आज के दिन हम पहला तीमुथियुस 1 और 17 वचन पर अध्ययन करेंगे। The King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आधार और महिमा युगान युग होती रहे। What a beautiful and comforting description of our God and Father. हमारा परमेश्वर और पिता के बारे में क्या ही सुंदर बातें यहाँ पर दी गई। He is the eternal and immortal. ये सनातन है और अविनाशी है And he is invisible King of the ages. और वो अनदेखे एकमात्र परमेश्वर है। He is the ruler of the time. और ये है और समय समय पर अधिकार करने वाला। And he is the sovereign of eternity. और ये सनातन का राजा है वो। And he is the governor of the earth. और ये सारी भूमि का अधिपति है वो। And he is the creator of the universe. और ये विश्व का सृष्टिकर्ता। He neither sleeps nor grows weary. और वो कभी ना सोएगा और वो कभी वो आलसी ना होगा। And he is upholding all with the might and of his power. और उसकी ताकत और शक्ति से हम सबको उठाए रखेगा। He is in full control of all that was and is to come. और जो कुछ भी पहले था और आज है और आने वाले इन सब उसके अधीन में है। And he knows the ending from the beginning. और वो अंत को आरंभ से ही जानता है। And he scheduled every day of our life. और हमारे जीवन के हर दिन का एक समय पालन करता है। Oh, Paul begins this section of scripture laying out the beauty of the gospel. पौलुस ने इस समाचार के सुंदरता को लेकर यहाँ पर लिखता है। Though we were dead in our sins, हो सकता है हम पापों में हम मरे हुए थे। though we were at enmity with God, हम परमेश्वर के साथ विरोध थे। though we were eternally separated from him, हम सनातन तक उससे अलग हो चुके थे। in his grace and love he stooped down in the person of Lord Jesus Christ. और उसके अनुग्रह प्रेम के प्रति वो प्रभु यीशु मसीह और बहुत ही नीचे स्थान पर उतर गया था। And he rescued us from the slavery of sin. और पाप की गुलामी से वो हमको छुटकारा And he दिया। has rescued us from the eternal death sentence under which we were all placed. और वो सनातन का जो मृत्यु का दंड था और उसके नीचे थे हम सब और उनसे हमको छुड़ाया। Yeah, Christ came into this world to save sinners. और मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए आया है। And Paul labels himself as the worst of sinners, to whom Christ would use an example. और पौलुस ने इन सबों से भी और भी मैं एक नाकामयाब पापी हूँ जिसको परमेश्वर ने मुझे बहुतायत से इस्तेमाल किया What है। Paul is telling? पौलुस ने क्या बोलता है? Paul is telling that if Christ can save a worst sinner like me, he can save anyone. इतना नीचे गिरा हुआ पापी को यदि परमेश्वर उद्धार दे सकता है, बचा सकता है, तो फिर और किसी को भी वो बचा सकता है। So there is no one outside the realm of Christ's saving love. तो फिर ऐसा नहीं होता है कि परमेश्वर को जो बचाए जाने वाले प्रेम के बैर है। And who all believe in him and his work on the cross will receive eternal life. जो कोई परमेश्वर पर उस जो क्रूस पर उसने किया उस काम पर वो विश्वास करेगा वो बच पाओगे। No surprise that after this description, Paul, who considered himself to be the least of the apostles and chief of sinners, और ये जो विवरण देने के बाद हम देखते हैं पौलुस ने अपने आप को मैं प्रथम पापी एक प्रधान पापी हूँ, इन सबों से भी मैं नीचे स्थान में हूँ। and then he penned this beautiful and comforting description of our God. और उसके बाद में हमारे परमेश्वर के बारे में इतनी ढाढ़स देने वाली बातों को वो लिखता है। So when we sit quietly and consider these words, यदि हम इन वचनों पर अध्ययन करेंगे और मौन रूप में बैठकर यदि हम पढ़ेंगे, then the awesome and weighty meaning behind them, all we can do is fall at his feet of our Savior and worship him. और इन बातों के पीछे जो गहराई का अर्थ है, कितने महानता है, इन बातों को हम देखकर और उसके चरणों में झुककर उसकी उपासना उसकी दंडवत करते हैं। Oh, it is written to the only God our Savior through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, authority before all the time, now and forever. क्योंकि यहाँ पे यही तो बात लिखा है, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रही। Let us spend the rest of our days giving honor and praise and glory and blessing to God. और हमारी बाकी जो जीवन है और परमेश्वर के उपस्थिति में हमारा समय बिताते हुए उसको आदर और उसकी महिमा देते रहेंगे। So let us join together and worship and glorify our Lord.
तो फिर आइए हम भी जुड़कर परमेश्वर की महिमा करें और उसकी आराधना करें, He alone is our God and Savior. क्योंकि केवल वही है हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु है, उद्धार करता है। And that's what we are reading today. ये बात हम आज पढ़ते हैं। हम Now to the King eternal, immortal, invisible and only God, be honor and glory forever and ever. अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। We will see each title given to God in this verse in a bit detail. और ये जो वचन में जो हमारे परमेश्वर को जो टाइटल दिया गया है, एक एक वचन पर हम अध्ययन करेंगे। First thing is, पहली बात यह है, the blessed God of the Bible is a royal God. ये जो बाइबल का धन्य परमेश्वर है वो एक राजा है। First, the blessed God of the Bible is a royal God. पहली बात क्या है, हमारा परमेश्वर जो बाइबल का धन्य परमेश्वर राजा है। In those days, उन दिनों में Artemis was considered as the queen of heaven. आर्तेमी है जो आकाश की रानी कहलाई जाती थी, उसको मानते थे। But the blessed God of the Bible is the king of all ages and is the king eternal. लेकिन बाइबल का ये जो धन्य परमेश्वर है युगान युग तक हर युग में वो राजा है। But what about the difference between these two? लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है? Artemis is a queen, आर्तेमी जो है वो एक रानी है, but God of the Bible is the king. That is very deliberate. लेकिन बाइबल का ये जो राजा है एकमात्र वो राजा है, वो In बाइबल referring- का परमेश्वर। In referring to the God of the Bible as king of the ages, और ये जो जैसे कि बाइबल के परमेश्वर को युगान युग का राजा है बताते हुए Paul picks up the Old Testament theology. पौलुस ने पुराने नियम से उन वचन को लेता है, Because in Psalm 10 verse 16, क्योंकि भजन संहिता 10 और 16 वचन में and God is described as king forever and ever. परमेश्वर यहाँ पर ऐसा उसके बारे में बताया गया है कि वो हमेशा हमेशा युगान युग का वो राजा है। And in Jeremiah 10:10, और यिर्मयाह 10 अध्याय उसके 10 वचन it is में written that he is an everlasting king. वो सनातन काल का राजा है। Note that God is the king of all the ages. यहाँ पर ये बात को अब जानना है कि परमेश्वर हर युग में युगान युग का वो राजा है And he is the king eternal. और वो सनातन का राजा है। He is not only the king of this age but king of every age. ये जो युग है ना केवल इस युग का राजा लेकिन हर एक युग का वो राजा है। He is the king for the past, present and the future. बीते हुए आज प्रस्तुत में और आने वाले भविष्य में भी वो राजा ही है। Where Jesus Christ reigns, there will be peace. जहाँ यीशु मसीह राज्य करते हैं वहाँ पर शांति होती है, Because people love God and love neighbor as themselves. क्योंकि लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने पड़ोसी से भी ऐसे So the प्रेम God करते of the हैं। Bible is a royal God. तो बाइबल का परमेश्वर है वो राजा है। And secondly, दूसरी बात, the blessed God of the Bible is an immortal God. बाइबल का जो धन्य परमेश्वर वो अविनाशी परमेश्वर है। That is, Artemis of Ephesians was thought to have been born in Ephesus. एफिसियों की जो आर्तिमी थे तो वो तो और एफिसियों में उसका जन्म हुआ है, And that is what the people say. वो तो लोग का कहना है। Her worship would cease when the supply of her images are interrupted. When the supply of those images, idols are not there, nobody will worship that idol. यदि वहाँ पर मूर्ति की कमी हो जाती है मूर्तियों की तो उस समय और ये मूर्ति या फिर आर्तेमी की उपासना करना बंद हो जाती है। In contrast, the blessed God of the Bible is immortal. अभी उसके विरोध में हम देखें जो बाइबल का परमेश्वर है वो तो अविनाशी है, He had no beginning or he will have no end. उसका ना कोई आदि है और फिर तो ना अंत है। Nothing threatens the glory and worship that he only is getting. लेकिन देखिए ना उसकी महिमा और उस पर आराधना केवल उसी को मिलते रहेगी। The idols may be made today, tomorrow they may need to be replaced. मूर्तियां जो आज बनती है और कल के दिन वो अपनी जगह से वो हट जाती है, Because everything tends towards decay, they will spoil. क्योंकि हर एक वस्तु जो चीजें है वो तो नाश होने वाली है। Everything except the blessed, God of the Bible. Nothing is immortal, only he is immortal. देखिए ना केवल परमेश्वर, केवल बाइबल का परमेश्वर ही अविनाशी है और सब बाकी सब नाश होने He वाली is है incorruptible. और वो अविनाशी है। And God of the Bible is same yesterday, today and forever. बाइबल का परमेश्वर कल आज और आने वाले कल एक ही समान रहेगा। So he is a royal God तो राजा परमेश्वर and है he is an वो, immortal और God. वो अविनाशी परमेश्वर है। Thirdly, तीसरी बात, the blessed God of the Bible is an invisible God. बाइबल का जो धन्य परमेश्वर है वो अनदेखी परमेश्वर है। The worship of Artemis
और भी जो आर्तिमी की जो आराधना करते हैं, It depend upon the craftsman who would fashion visible images of her. Based on the image, the beauty of the image, people will worship. The beauty of the image is dependent on the craftsman. वो मूर्ति की जो चेहरा की सुंदरता जैसे वो बनाने वाला है, उसके अनुसार वो लोग उसकी आराधना करते रहते हैं। Now in the Google you can see the images of Artemis. आप जाकर गूगल में आप देख सकते हैं वो जो आर्तिमी मूर्ति की How she looked like. वो कैसे दिखती है वो। But the God of the Bible is invisible. लेकिन बाइबल का परमेश्वर अनदेखे परमेश्वर है। God's glory is wrapped up in his invisibility. परमेश्वर की महिमा उसके अंधे गीत में वो बना हुआ है, लपटा हुआ It है। is impossible to prepare an image of him. क्योंकि परमेश्वर की एक मूर्ति बनाना या फिर उसके स्वरूप को बनाना ये तो असाधारण की बात है। So he is an invisible God. ये अंधे का परमेश्वर है। So new covenant worship involves devotion to the apostles' teaching. और नए नियम की आराधना है जो प्रेरितों ने शिक्षा दी है उस पर निर्भर है। Yeah, we worship the Lord by reading the scripture and preaching the scripture. हम वचन व्यवस्था को पढ़ते हुए वचन के अनुसार परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं, But not based on a idol. लेकिन मूर्ति पर निर्भर होकर नहीं करेंगे। And fourthly, चौथी बात, the blessed God of the Bible is the only God. और ये जो बाइबल का धन्य परमेश्वर वो एकमात्र केवल वही परमेश्वर है। That's what Christianity says. ये है मसीही लोग कहते हैं। Artemis is an idol. आर्तेमी क्या है? ये तो केवल मूर्ति है। There is no real existence as per 1 Corinthians 8:4. पहला कोरिन्थियों 8 और 4 वचन के अनुसार वो तो कहीं प्रस्तुत है ही नहीं। वो तो The Bible clearly says that the God of the Bible is the only God. बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है बाइबल का परमेश्वर ही केवल वही एक ही परमेश्वर है। There are not many gods. और भी कई सारे परमेश्वर नहीं होते। So before I move to the rest of the verse, और फिर मैं इस वचन में जब आगे बढ़ने से पहले the question is, सवाल ये होता है, do you believe all these things about Christ? क्या मसीह के बारे में ये सारी बातों पर आप विश्वास करेंगे? Yeah, your eternal destiny depends on your recognition of this God. और भी जो आपका हमेशा का सनातन का जो मुकाम है ये परमेश्वर पर, ये सच्चे परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर पर निर्भर है। As a matter of fact, our destiny as human beings, it is death. वास्तव में जो हमारा लक्ष्य है या फिर हमारा मानव का मुकाम है ना, वो तो मृत्यु है। But if you read 2 Timothy 1:10, लेकिन आप पढ़ेंगे दूसरी तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय 10 वचन में, God abolished death. Christ abolished death. मसीह ने इस मृत्यु को वो नाश कर दिया, And he निकाल दिया brought है। life and immortality to light through the gospel. और सुसमाचार के द्वारा जीवन को अविनाशी को लाया है। So in Christ only in Christ, our mortality can put on immortality. केवल मसीह में ही हमारी जो नाश होने वाली अविनाश हो सकती है। That's what is written in 1 Corinthians 15th chapter. ये बातें पहले कोरिन्थियों और उसका 15 अध्याय में We लिखा will है। find eternal life in him alone. और हम केवल उसी में हम अनंत काल के जीवन को पा सकते हैं। So today believe this. तो आज ये बातों पर विश्वास कीजिए। And finally, और अंतिम में the blessed God of the Bible is a praiseworthy God. बाइबल का जो धन्य परमेश्वर है स्तुति के योग्य है। Yeah, he is a royal God, वो राजा परमेश्वर है, immortal God, अविनाशी परमेश्वर है, invisible God, वो अनदेखा परमेश्वर है, incomparable God, और हम किसी को उसके साथ तुलना नहीं कर सकते। and he is worthy of praise. ये स्तुति के योग्य That's परमेश्वर। why be honor and glory forever and ever. इसीलिए तो सारी आदर महिमा हमेशा हमेशा उसी की युगान युग तक होती रहे That's उसकी। why believe this God. इसीलिए तो इस परमेश्वर पर आप विश्वास कीजिए, Then you can be saved. और आप उद्धार पा सकते You हैं। can be saved from sin. पाप से उद्धार पा सकते You हैं, can be saved from death. आप मृत्यु से भी, You can be saved from grave. आप उस कब्र से भी आप उद्धार पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। Oh, what a wonderful God. क्या ही अद्भुत परमेश्वर है हमारा। Such a God loving you, he came in the form of man and died for you on the cross. ऐसा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो इस धरती पर उतर गया है और कलवरी के क्रूस पर अपने जान को बलिदान दिया। Oh, what a wonderful love. क्या ही अद्भुत प्रेम है। Believe in Jesus Christ. और यीशु मसीह पर विश्वास रखिए You will be saved. और आप उद्धार पाएंगे, बच जाओगे। Get washed by the precious blood of Lord Jesus. तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप धुल जाए, Oh, then you can become a child of God. तब आप परमेश्वर के संतान बन Then सकते this God will become your God. हैं। ये परमेश्वर आपका परमेश्वर You बनता also है। will become an immortal being. आप भी अविनाशी बन सकते हैं। Oh, what a wonderful privilege by believing in Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या ही भलाई का काम है ये। Oh, may God help you to do like that. परमेश्वर
इस प्रकार से करने में आपकी सहायता करें। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, the royal God, अब राजा परमेश्वर है, incorruptible God, अविनाशी परमेश्वर, immortal God, अनदेखे परमेश्वर, invisible God. अनदेखे Oh, परमेश्वर, you are worthy of all our praise हमारी स्तुति के योग्य परमेश्वर because है, you came in the form of man and died for us. क्योंकि आप मनुष्य का रूप धारण करके आए थे और हमारे लिए आप मर गए। Our dear ones who are hearing this word, जो बातें ये हमारे प्रिय लोग सुन रहे हैं, oh Lord, they may believe it, प्रभु सहायता कीजिए कि वो विश्वास or करें they may believe in Thee. और आप पर वो विश्वास रखें। Thus they may be saved from sin, death, grave. ऐसा करने से प्रभु वो पाप से, मृत्यु से और कब्र से वो मुक्त पाए, Oh, उद्धार पाए grant them the true joy. और सच्ची शांति, सत्य आनंद को प्रभु आप उनको दीजिए। In Jesus' precious name we pray. और यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को चढ़ाते सुने ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।